آج کا جو ہمارا اسپیشل ٹاپک ہے وہ ہم اسی پہ رکھتے ہیں. آلریڈی میں نے اس کے اوپر کافی تفصیلی ویڈیوز مختلف اوقات میں ریکارڈ کروائی ہیں، لیکن چونکہ اب ایک ماحول بنا ہوا ہے اس حوالے سے، تو ماحول کے اندر ایک عام آدمی کا انٹرسٹ بھی بات کو سننے کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو عام حالات و واقعات کے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہیں. جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی، لہذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک آزمائش کے طور پر کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا جاتا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزمائش پھر کسی ایسی شخصیت کے ذریعے کرے گا جسے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں 33 ایئرز کی ایج میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. نمبر 2، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. نمبر 3، عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کے طور پر نازل ہوں گے. صلیب کو توڑ دیں گے، اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. امام مہدی ان کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دی جائے گی، کیونکہ دجال کا فتنہ ایک اتنا ایکسٹراڈنری فتنہ ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم. اور نمبر 4، وہ 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے. اسی دوران وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، یعنی ان کی عمر 73 ایئرز ہوگی. 33 وہ جو دنیا میں گزار چکے، 40 ابھی انہوں نے گزارنی ہے. اور نمبر 5 عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ شریف میں دفن کریں گے. یہ جو 5 عقیدے ہیں نا، یہ قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان 5 عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ چند وہ مسائل جن کے اوپر اجماع امت ہے ان میں سے ایک ہے. ویسے کوئی شخص اٹھ کے ختم نبوت کا معنی بدل کے تو غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ کھڑا کر دے تو ہم اسے یہ کہیں گے بھئی ختم نبوت کا عقیدہ جو تم بیان کر رہے ہو، اس طرح کا ختم نبوت کا عقیدہ امتی نبی والا تو کبھی نہیں رہا، یہ تمہاری خرافات ہے. اسی طریقے سے آج کا کوئی فلاسفر یا کوئی ماڈرن عالم دین کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، تو بھی تمہاری خرافات ہے. قرآن و سنت اور اجماع امت کے ساتھ تمہارے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں. تمہاری گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجماع امت اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے. یہ امت نے عملی تواتر اور اجماع سے قرآن ٹرانسفر کیا ہے، ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اجماع سے مراد ہوتا ہے جب پوری امت کا ایک عقیدہ ہو. ہاں اگر اختلاف پایا جاتا ہو پھر وہ اجماع امت نہیں ہوتا. تو جس طرح قرآن کے بارے میں یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ محفوظ ہے کتاب، سنی ہو شیعہ ہو جتنے بھی ان کے آف شوٹس ہوں سب کا یہی عقیدہ ہے، اس طرح یہ والا جو عقیدہ عیسیٰ ابن مریم والا، اس کے اوپر نہ صرف ود ان اسلام یا مسلمانوں میں اجماع ہے بلکہ انسانیت کا اجماع ہے. جیوز اور کرسچنز بھی مانتے ہیں، خیر ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے، لیکن بہرحال ایک پرسنالٹی کے بارے میں سب متفق ہیں. تو اس حوالے سے جو لوگ چیزیں نکالتے رہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی الاسلام نے واضح فرمایا تھا، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 115 اس سے سپورٹیو ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا. یعنی پوری امت اگر کوئی عقیدہ بتا رہی ہوگی نا وہ کبھی گمراہی پہ مبنی نہیں ہوگا. مثلا پوری امت بتاتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں، پوری امت بتاتی ہے کہ نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے، پوری امت بتاتی ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے. یہ اجماعی عقیدہ ہے. پوری امت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کو غسل دے کر کفن دے کر قبلہ رخ قبر میں رکھنا ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے. یہ ایگریڈ اپون چیزیں ہیں، یہ اجماع امت والی چیز ہے. اسی طریقے سے حیات مسیح اور نزول مسیح
अलैहिस्सलाम के ऊपर भी उम्मत का इजमा है। किसी बंदे के इख्तिलाफ करने से कोई उसकी अहमियत नहीं है कि उसे इतना उजागर किया जाए कि आप एक मुसीबत डाल के बैठ जाएं। हम दलाइल रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, साथ साथ इन लोगों के शैतानी वसवसों का रद्द भी करेंगे ताकि एक आम आदमी को बात समझ आ जाए। सबसे पहले कुरान पाक में जो आयात है मैं इंशाअल्लाह वो कवर करूंगा 3 मकामात से, ईसा इब्न मरियम से मुतालिक जो हयात मसीह और नुज़ूल मसीह से रिलेटेड आयात हैं, और उनकी साथ साथ तशरीह भी करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसी हस्ती कि जिसको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया, और सूरे मरियम में फरमाया कि हम तुम्हें और तुम्हारी औलाद को, सैयदा मरियम को फरमाया कि जहान वालों के लिए निशानी बनाने वाले हैं। उसके बाद सूरे मरियम में ही आया कि उन्होंने शीरख्वारगी की उम्र में कलाम किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे अपनी वालिदा के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाया है। सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। तो ईसा इब्न मरियम की पैदाइश भी मौजज़ाना, बचपन में ऐलान नबूवत करना, शीरख्वारगी की उम्र में जब दूध पीता बच्चा है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, और उसके बाद फिर जो मौजज़ात अल्लाह ताला ने दिए कि अंधों को अल्लाह ताला के इज़्न से शिफा दे देते थे, इसी तरीके से जो कोड़ी के मरीज थे उनको शिफा दे देते थे अल्लाह के इज़्न से। सूरतुल माइदा में, सूरह मरियम में, सूरह आल इमरान के अंदर ये 3 मेन सूरतें हैं जिनमें ईसा इब्न मरियम का तफसीली जिक्र आया, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और सबसे बढ़कर मट्टी की मूरत में फूंक मारते थे तो वो परिंदा बन जाती थी अल्लाह के इज़्न से, और मुर्दों को जिंदा कर देते थे अल्लाह के इज़्न से। अब ये क्वालिटीज किसी और पैगंबर को अल्लाह ताला ने नहीं दी। यहां तक कि फरमाया कि रूहुम मिन, वो अल्लाह की रूह है। इसी की वजह से बाद लोगों ने धोखा खाया और उन्हें खुदा का बेटा कह दिया, हालांकि अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम का स्टेटस बिल्कुल क्लियर किया कि वो अल्लाह के बंदे हैं। सूरह आल इमरान की शुरू की आयत का टॉपिक ही यही है। बहरहाल जिस शख्सियत के साथ इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जुड़ी हों तो इंसानियत ने फिर उनके बारे में यही क्लेम करना है कि कम से कम इन्हें खुदा का बेटा मानो या फिर खुदा क्लेम कर दो। और ये दोनों अकायद उनके साथ लोगों ने मंसूब किए। कैथोलिक का अकीदा है कि वो खुदा के बेटे हैं, और प्रोटेस्टेंट का अकीदा है कि वो ईसा इब्न मरियम खुद अल्लाह हैं जो कि इंसानी शक्ल में जमीन के ऊपर आ गए, वलियादु बिल्लाहि ताला। और अल्लाह ताला ने दोनों अकीदों का रद्द किया है बड़ी तफसील के साथ। सूरह आल इमरान में और सूरतुल माइदा में तो जिस शान से डिस्कशन हुई है वो तो अपनी नौयत की एक यूनिक डिस्कशन है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, जबकि मसीह तो खुद ये कहा करते थे, या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, इबादत करो उस रब की कि जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, याद रखना बेशक जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, लक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स पे जन्नत हराम कर दी है। वमअवाहु नार, और उसका ठिकाना है जहन्नम की आग। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे शख्स का क़यामत के दिन कोई मददगार भी नहीं होगा जो इस किस्म का अकीदा वाबस्ता करेगा। इससे ज्यादा तो बेहतर अंदाज में समझाया नहीं जा सकता था। फिर आगे चल के फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, वो भी काफिर हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह 3 में से एक है। यानी वो कहते थे कि उस वक्त ट्रिनिटी ये थी कि 3 खुदा हैं, अल्लाह, सैयदा मरियम और सैयदना ईसा इब्न मरियम। आज की जो ट्रिनिटी है उसमें सैयदा मरियम को तो साइड पे करके उन्होंने होली गोस्ट को दाखिल कर दिया है, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम। बहरहाल ट्रिनिटी आज भी उस तरीके से मौजूद है। फिर आगे चल के अल्लाह ताला ने फरमाया कि मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल, क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, उनकी मां एक सच्ची औरत थी। काना याकुलानि ताम, दोनों खाना खाया करते थे, दोनों रोटी खाने के मोहताज थे। देखो हम अपनी आयात किस तरह खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। और फिर इनकी तरफ देखो,
किस तरह ये उल्टे पड़े जाते हैं। क्या तुम ऐसी हस्तियों को अल्लाह के सिवा पूज रहे हो कि जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं ना नफा के मालिक हैं, और अल्लाह ही सुनने वाला और इल्म वाला है। यानी इसमें वाज़ेह अकीदा अल्लाह ताला ने बता दिया कि ईसा इब्न मरियम और उनकी मां मिन दूनिल्लाह भी है, इस एतबार से कि अल्लाह के मुकाबले पे लोगों ने उनको खड़ा किया। लिहाजा यह भी एक ढकोसला जो था बाज फिरकों का कि मिन दूनिल्लाह से मुराद सिर्फ बुत हैं, वो भी खत्म हुआ। नंबर 2, ना सिर्फ उनकी परस्तिश की नफी की, बल्कि साथ ये कहा कि ये तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक भी नहीं है। लिहाजा उन लोगों का भी दरवाजा बंद हो गया जो ये कहते थे कि हम में और क्रिश्चियंस में ये फर्क है कि क्रिश्चियन जो है वो अल्लाह के पैगंबर की इबादत करते हैं, उसकी मां को पूजते हैं, हम तो औलिया अल्लाह और अंबिया की इबादत नहीं करते, हम तो उन्हें अल्लाह का बंदा मानते हैं। तो इसमें मैंने कहा था ना, आगे चल, आगे लिखा हुआ है कि ना वो तेरे नफे के मालिक हैं ना नुकसान के। और कितनी आप समझ लें, वो हमारे डॉक्टर सार साहब इसके लिए वर्ड यूज करते थे, नंगी बात, यानी बिल्कुल खुली हुई बात कि वो रोटी खाने के मोहताज थे। भाई अगर ईसा इब्न मरियम और उनकी मां रोटी खाने के मोहताज है और वो किसी के नफा और नुकसान के मालिक नहीं है, तो सरकार बाबे दे शाही कोई नहीं। बिल्कुल कुरान की हर आयत से यही रिजल्ट निकलता है कि बाबे दे शाही कोई नहीं। ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अगर ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने सेंटर्ड किया है तो सिर्फ इसलिए कि आपके सामने ये मुकदमा बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि अगर ईसा इब्न मरियम जो उलुल अज़म पैगंबरों में से हैं, 5 उलुल अज़म पैगंबर कुरान में रिपोर्ट हुए हैं, सूरतुल अहज़ाब में सूरह अश-शुरा के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, नूह नजीउल्लाह और ईसा रूहुल्लाह अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, उनमें से एक हैं। अगर उनका यह स्टेटस है कि वो रोटी खाने के मोहताज हैं, किसी के नफा नुकसान के वो मालिक नहीं है, तो सरकार फिर बाकियों को तो आप छोड़ दें। और फिर सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने जितने सख्त अल्फाज के अंदर इस टॉपिक को एड्रेस किया है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफर कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। नाऊज़ु बिल्लाह। क़ुल फ़मन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, ये शैआ बाबे तशाई कोई नहीं, ये अरबी से लफ्ज़ आया है। ऐ नबी इनसे फरमाओ अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा इब्न मरियम को, उनकी मां को और जितने जमीन में है सबको हलाक कर दे, यानी सारे बाबे फारिग, तब भी अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता। तो यहां पे अल्लाह ताला ने तौहीद को फिर एस्टैब्लिश किया। गुस्सा था क्रिश्चियंस पे, सेंटर्ड किसे किया? ईसा इब्न मरियम को, क्योंकि अल्लाह ताला को तो कोई आर नहीं है, यह कायनात उसने इसलिए नहीं बनाई है कि उसके पैगंबरों को खुदा मान लिया जाए। जब तौहीद समझाएगा अल्लाह ताला फिर इसी तरीके से समझाएगा कि अगर अल्लाह ईसा, उसकी मां और सबको हलाक कर दे। अच्छा, विसाल शरीफ भी नहीं फरमाया, वफात शरीफ भी नहीं, हलाक का लफ्ज है सिर्फ यह बताने के लिए कि खालिक और मखलूक में कितना फर्क है। यह है सरकार रहमानी तौहीद, और एक है शैतानी तौहीद। शैतानी तौहीद यह है कि अंबिया को, औलिया को, बुजुर्ग बाबों को अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा कर दो, खा उनकी तालीमात ना भी हो तब भी उनको खड़ा कर दो अल्लाह के मुकाबले पर। फिर जाहिर है कि जब इस तरह का मामला होगा फिर इस लेवल पे उतर के अल्लाह ताला समझाएगा कि ईसा को खुदा माने हो, अगर अल्लाह ईसा को, उसकी मां को, सबको हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? तो फिर इस लेवल पे उतर के बात को समझाना पड़ता है। और भी अल्लाह ताला फरमाया ईसा इब्न मरियम कभी यार महसूस नहीं करेंगे इस बात पर कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए, ना कोई मुकर्रब फरिश्ता। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ताला फरमाया कि अगर कोई इस चीज से आर महसूस करेगा ना, फिर क़यामत वाले दिन हम सबको जमा कर लेंगे और अजाब देंगे ऐसों को। यह समझाने के लिए था, ऐसा कभी नहीं होना था। फिर अल्लाह ताला ने यहां तक फरमाया, यह सूरह अन-निसा में थी आयत, सूरह आल इमरान में, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी पैगंबर को नबूवत देकर भेजें और वो लोगों से यह कहना शुरू कर दे कि लोगों मेरी इबादत करो अल्लाह के सिवा या अल्लाह के साथ